Okay, so today I'm going to start the topic that is types of interaction in e-governance. So there are four types of interactions between in e-governance that are G2G means government to government. Second is G2C government to citizen. Third is G2B government to business, and fourth is G2E government to employees. So first we will discuss about G2G, that is government to government interaction. So when the exchange of information and services is within the periphery of the government is termed as G2G interaction. Means government to government means national government is talking to the state governments, or state government is talking to the other state government. One state government is talking to the other state government, or state government is talking to the local government, comes under this category. So there are also the two types of categories: horizontal G2G interaction, and second is vertical. So horizontal means this can be both. Horizontal means among the various government entities, and vertical means between the national, state, and local government entities, and within the different levels of entity. Okay, so first is horizontal. Horizontal means among various government entities. ठीक है. And second is vertical. Vertical means national to state, or state to local, or local to national. That comes under vertical category. And horizontal means one state government is talking to the other state government, comes under this category. So that is G2G category. Okay. So if one state government talk to the other state government, that is comes under the horizontal category, means within the same hierarchy. ठीक है. And if national government talking to state government, or state government is talking to the local authorities or local government, ठीक है, that comes under the vertical G2G interaction. Okay, is it clear? Is there any doubt? No, sir. No, sir. Next is G2C. G2C is what? Government to citizen. The interaction between the government and general public is G2C interaction. Interaction between government and general public. General public means citizens, or the residents of that country, comes under this category is G2C interaction. Like you want to means transfer subsidy, or transfer any direct benefit to the customer, can comes under this category. Here an interface is set up between the government and citizens, which enables citizens to get access to wide variety of public services. So here the interface is set up between government and citizen. So there has been created an interface, like if you want to transfer LPG subsidy to directly to the account of that residents, okay, that comes under this category, which enables citizen to get access to the wide variety of public services. Okay, the citizen has the freedom to share their views and grievances on government policies anytime, anywhere. अभी इस लेवल का अभी हम देखें तो G2C गवर्नमेंट्स जो सिस्टम है वो अभी सेटअप नहीं हुआ है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सके, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अभी आप देखें लास्ट डिकेड के अकॉर्डिंग तो काफ़ी हद तक चेंजेस आपने देखने को मिले हैं इस फील्ड में. ठीक है, तो द सिटीजन्स हैज़ द फ्रीडम to share their views. ठीक है, you can share your views, even your grievance. And even if you go to the state government website, and you directly put there your query or your grievance or your complaint regarding system, है ना. और अभी आप जैसे ट्विटर में है तो ट्विटर में आप क्या करते हैं, ट्विटर में जैसे आपने कुछ भी ट्वीट कर दिया, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री का या किसी का, और आप देखते हैं कि उसमें तुरंत इमीडिएट एक्शन हो जाता है. ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द G2C. ठीक है, तो यही अभी देखिए तो आगे आने वाले टाइम में और स्ट्रेंथन होता जाएगा. ठीक है, अभी भी हम देखें तो पिछले 10 सालों के मुकाबले काफ़ी चेंजेस देखने को मिले इस फील्ड में. तो अगले 10 सालों में अभी आप देखेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. इवन हो सकता है कि जो हम वोट कास्ट करते हैं वो भी हम वैसे ही करने लगे. ठीक है, ऑनलाइन मोड में ही ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हुए हम वोट कास्टिंग भी कर सकते हैं इन फ्यूचर. ठीक है, इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? No, sir. Okay. Next is G2B. G2B is what? Government to business. In this case, the e-governance helps the business class to interact with the government seamlessly. ठीक है, like government is running public-private partnership. ठीक है, where the private stakes are much more higher than 51%.
ठीक है, एंड PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, और लाइक इंडियन रेलवे जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो बिजनेस एंटिटीज भी गवर्नमेंट रन करती है ना, तो द ई गवर्नेंस हेल्प्स द बिजनेस क्लास टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट सीमलेसली। अभी आप देखिए जैसे कोई टेंडर वगैरह भी निकालना होता है तो वो भी गवर्नमेंट अगर उसको टेंडर देना चाहती है तो वो भी अब ई टेंडर पास करने लगे हैं, ठीक है। So it aims at eliminating red tapeism. So it is basically to work for eliminate the red tapeism. What is red tapeism? Anybody? What is red tapeism? This is unnecessary delay, है ना? Unnecessary delay in following the rules and regulations. So that comes under this category. So that is known as red tapeism. Saving time, ठीक है, cost, establish transparency in the business environment while interacting with the government. So that are the benefits of this applying G2B in e-governance, है ना। तो G2B interaction अगर आप implement करते हैं तो you may get these benefits। और अभी आप देखिए तो मोस्टली आप देखें तो मिनिस्ट्रीज की भी अलग अलग वेबसाइट हो गई हैं और उससे जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं वो उसके थ्रू वो रन करते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट, आप इंडियन रेलवे की आप देख सकते हैं तो सेपरेट वेबसाइट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं क्या कहते हैं ये टूरिज्म है, ट्रैवल है, और अलग अलग मिनिस्ट्री की भी आप देख सकते हैं तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं। और इवन कृषि से रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, तो अदर सेक्टर में भी अब आप देखिए तो वो सब क्या कर रहे हैं गवर्नेंस के थ्रू या ये आईसीटी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ भी मतलब ट्रांजेक्शन करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। Next is government to employee. What is government to employee? The government of any country is the biggest employer, and so it also deals with the employees on regular basis. ठीक है, गवर्नमेंट आप देखें तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है किसी भी और किसी भी कंट्री का। जैसे इंडियन रेलवे है तो इंडियन रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली इफ यू वांट टू टॉक टू योर एम्प्लॉयज, ठीक है, तो यू कैन डू सो बाय इंटरेक्टिंग थ्रू दिस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज मेनली built for G2E, government to employee, and as other employers do. And ICT helps in making the interaction between government and employees fast and efficient. If you use the ICT, information and communication technologies, ठीक है, to interact the employees or to communicate the employees, so that would be much more faster and efficient than that traditional method of interacting. Means if you float a notice na, and send a peon to just sign all the authorities, है ना, तो it will take time, while if you want if you adopt this ICT, ठीक है, information and communication technology, it would be much faster and efficient than the previous mechanism that that we were using at just before 1 decade. So along with raising this their level of satisfaction by providing prerequisites and add-on benefits, means extra जो facilities वगैरह हैं वो सब भी आप जो है उनको जो भी हैं वो सब आप direct benefit उनको दे सकते हैं। एज आई हैव टॉक्ड अर्लियर कि जैसे बोनस है या कुछ एरियर वगैरह है जो एम्प्लॉयज़ का है और वो आपको रिलीज करना है तो वो आप डायरेक्टली उनके अकाउंट में दे सकते हैं, ठीक है। पहले आप पुराने सिस्टम में जाइए, ट्रेडिशनल सिस्टम में, तो पहले जो सैलरी मिला करती थी वो कैश में मिला करती थी, लिफाफे में बंद करके, और तब जो है डिलीवर दिया जाता था, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। और अब आप देखिए तो डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो that is also a significant change just because of this implementing ICT in this area, ठीक है। तो ये है आपका देखिए तो दिस इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस दैट वी आर यूजिंग नाउ डेज, ठीक है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आप इसका काफ़ी अब वाइड एप्लीकेशन अब आपको देखने को मिलता है। जैसे अभी आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है,
कुछ भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना। इवन मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, सब कुछ आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को गेट करने के लिए आपको किसी गवर्नमेंट मतलब ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर के प्रोसेस देख सकते हैं, जो उनकी डिजायर्ड फीस है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी आप नेट बैंकिंग वगैरह है इसका इस्तेमाल करके फिल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल कर सकते हैं, फी पे कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अब जो सर्टेन टाइम है, ठीक है, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर देता है, ठीक है। अब जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप जो है पोर्टल पर गए, उस पर जाकर के आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने फी पे की, ठीक है। लर्निंग के लिए वो आपको बुलाएंगे, एक बार आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 6 मंथ बाद आपका जो क्या कहते हैं परमानेंट जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा, ठीक है, लाइसेंस है वो इशू हो जाएगा। तो इसी तरह से पासपोर्ट के केस में होता है। तो आपका जो इंटरेक्शन है, ठीक है, जैसा आप पहले करते थे ऑफलाइन मोड में, आप ऑफिसेस के चक्कर काटते रहते थे, वो समस्या आप जो है खत्म हो गई है जब से ये आईसीटी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, और ये इसके बेनिफिट्स हैं। इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. Okay. E-governance can only be possible if the government is ready for it. ठीक है, it is not a one day task, and so the government has to make plans and implement them before switching to it. E-governance is not a one day activity कि आपने जो है सोचा और मैं जो है इसे इम्प्लीमेंट कर लूंगा, ठीक है। इवन आप देखिए तो एक डिकेड से ज़्यादा हो गया है गवर्नमेंट अभी वेबसाइट्स पर काम कर रही है, आईसीटी पर काम कर रही है। इवन अब आप देखिए तो एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इन सब का भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन करने लगे हैं, ठीक है। तो अब ये एक दिन का टास्क नहीं है, बल्कि इसमें डिकेट्स लग जाते हैं, ठीक है। और उस फिर जो है आप देख पाते हैं, एक डिकेट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको जो है इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, ठीक है। सो द गवर्नमेंट हैज टू मेक प्लान एंड इम्प्लीमेंट। अब आप देखिए ना, जो गवर्नमेंट प्लान करती है वो किस हिसाब से करती है, नीति आयोग जो भी बनाता है पॉलिसी वगैरह, वो किसके हिसाब से बनाता है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, नेक्स्ट 10 ईयर प्लान, ठीक है। तो मीन्स वो उसके लिए अभी से प्लान कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। और जो भी पॉलिसीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब सेटअप करना बहुत मतलब टीडियस टास्क है। तो गवर्नमेंट हैज टू मेक प्लान एंड इम्प्लीमेंट देम बिफोर स्विचिंग टू इट, ठीक है। आपको प्लान करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब आप जो है उस पर स्विच कर पाएंगे। अब आप देखिए सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज आता है वो आता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को फेस करना मेजर चैलेंज है। आप देखिए तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट, इनकी आपको फिलोसफीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, तब जा करके आप जो है इस पर स्विच कर पाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेजर्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है। अभी आप देखिए तो जो एमएसएमई में है 3 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों के लिए बनाया है, ठीक है। बजट जो दिया है, तो बजट रिसोर्सेज, इंश्योर सिक्योरिटी, मॉनिटर असेसमेंट, ठीक है। जो भी आप मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन सी नई मैकेनिज्म हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड, दैट इज मेजर हिंड्रेंस। अब आप देखिए हम 4G LTE पर हैं और अब हमें 5G की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड प्रमोट द अवेयरनेस अमंग द पब्लिक रिगार्डिंग द इम्प्रूव इम्पोर्टेंस, ठीक है। होता क्या है, गांव में जा जा करके कैंप लगाते हैं, उसमें जो है लोगों को डिजिटल लिटरेसी के लिए कैंपेन करते हैं, उसमें लोगों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। लर्निंग प्रैक्टिसेस वहाँ पर नॉलेज वगैरह देते हैं, ठीक है। पंचायत के थ्रू सपोर्ट फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जब आप कुछ भी यही गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। खासतौर से E2C में बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। अब आप देखिए अभी जो कह सकते हैं कि 2021 तक जो 80 करोड़ यूजर्स होंगे, ठीक है, उसमें भी आप देखिए तो डिजिटल लिटरेसी जो आपके फॉर लॉन्ग एरियाज हैं वहाँ पर कम है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए उनको एजुकेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको नॉलेजेबल करना सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए तो एम्प्लॉयज़ के लिए आप अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। जो डिले होता है, नेसेसरी डिले होता है वो कम हो जाता है, ठीक है।
तो ये सब बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट अभी इन्हें अडॉप्ट कर रही है. ई गवर्नेंस हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले दैट improves and supports all tasks performed by the government department and agencies. ठीक है, so great role to play to improve and support all tasks performed by government department and agencies because it simplifies the task on one hand and increase the quality of work on the अदर हैंड. तो बेसिकली होता क्या है, जो टास्क है वो सिंप्लीफाइड हो जाता है. ठीक है, जो आप बार बार फाइल मेंटेन करते हैं, आप उस फाइल में आप देखिए तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, फिर फाइल को सेव करना है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. वो सब क्या है कि वो उस तरीके से आप देखेंगे तो जो टास्क है वो आपका सिंप्लीफाइड हो गया. इजी स्टेप्स में आपको उनको जो है प्लान करना है और इम्प्लीमेंट कर देना है. ठीक है, और इससे क्या होता है, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑन द अदर हैंड. ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव हो जाता है, आप ज़्यादा फास्टर पेस पर काम कर पाते हैं. ठीक है, तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस. इज इट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, sir. Okay, so this is about the types of interaction in e-governance and ठीक है. So this web references, if you say that the intact1.com, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, और अदर वेब रिसोर्सेज के थ्रू मैंने जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है, तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी इसमें, तो आप इसको जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.